Hello भाई नमस्कार. This is the case which I have to present on 17th of March और मैं इसको वॉइस नोट के ज़रिए भेज रहा हूँ भैया. एंड दिस इज़ द केस ऑफ ए 35-year-old male who is a bus driver in a government setting. और वो मेरे पास आया था फॉर हिज मेजर सेक्सुअल प्रॉब्लम. सो व्हेन आई आस्क्ड हिम ये प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री बतलाओ, देन ही सेड कि आई ड्राइव बस एंड देयर वाज एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज टेकिंग ए टर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑन एन इंटरसेक्शन. ए मोटरसाइकिलिस्ट केम इन माई वे एंड unfortunately the person was killed. I have guilt feeling after this accident. I have taken counseling from psychologists as well. मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता. मेरे को लगता है कि मेरे को कोई देख ना ले. मेरे जो को ड्राइवर्स हैं वो ये ना कहें कि वो देखो वो किलर जा रहा है. आई डू नॉट वांट टू गो टू द सेम इंटरसेक्शन. मेरे को एक्सीडेंट का फिर डर है. उसी जगह पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने की सोचता और मेरे को डर लगता है. मैं अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के बाहर निकलता हूँ बिकॉज़ मेरे को है कि मेरे को कोई देख लेगा और इससे मेरे को सोशल एंग्जाइटी भी हो जाती है. इस इंसिडेंट के बाद मेरी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ही तहस नहस हो गई, बिल्कुल ही ख़राब हो गई. और मेरे मन में ये लगा रहता है कि कुछ ना कुछ बैड हो जाएगा. When I do sex, my erection vanishes. चली जाती है. जब कभी मेरी इरेक्शन ठीक होती है तो एन्जॉयमेंट नहीं होती. ऐसा लगता है एज इफ़ आई एम डूइंग इट फिजिकली बट मेंटली आई एम नॉट एन्जॉइंग. आई हैड हैबिट ऑफ मास्टरबेशन, रादर आई हैड द एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन in the past. Now we are trying for a child, we are trying to conceive, but my sexual life is totally disturbed after this accident. I did not take much allopathic drugs, fearing कि addiction ना हो जाए, and I do not want to take a risk. और मैं मेडिकेशन के ऊपर, एलोपैथी मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता क्योंकि मेरे को वो कोई ना कोई बैड रिज़ल्ट दे सकती है, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट दे सकती है, कोई साइड इफ़ेक्ट दे सकती है. माई इरेक्शन इज़ वेरी मच अफेक्टेड. माई माइंड रिमेन्स फॉगी. सेक्स करने से पहले ही मेरे मन में डर आ जाता है. So this was the case. After listening to the story of this patient, I had prescribed him the remedy in 200 potency. After 1 month, he came back and he reported that for 20 days after taking the remedy, I was all okay. My sexual power had returned back. I was performing like I used to do earlier before the accident. But there was one thing which happened. One of my driver colleagues, he calls me one day on telephone. As soon as I saw his name on the screen, I got panicky, thinking that now this colleague of mine will say me that you have
killed a person on the road. I didn't want to pick up his phone, but somehow I picked it up and he said that he is coming to meet him. He came next day. He sympathized with me. He did all positive talk, but as soon as he was about to leave my house, he said such a thing. He told me some story which again put me in the same reverse gear. He told me a story of some old woman who was killed on the road by some other driver due to the fault of the driver. After listening to this, there was again same situation which I had come for in the initial days. Erection problems started. I am unable to do the sex again. If that person wouldn't have come to my house, I was really performing very well and my anxiety levels had also been taken care of. So this is the case. What we have now to do is to find the simillimum when he came to me for the first time, and when he is coming on the follow-up, what needs to be done now in order that we can help this gentleman. Please analyze the case and give your valuable comments, and let's learn from each other. Let's learn mutually. Thank you very much. Thanks a lot. उसने फॉलोअप डेट पे ये भी बतलाया कि जहाँ उसको डर लग रहा है, जहाँ उसको इतनी एंग्जाइटी हो रही है और वो उसकी एंग्जाइटी हार्ट रीजन में ज़्यादा हो रही है और इमोशनल हो जाता हूँ जब ये थॉट आता है और मेरे को बहुत गिल्ट दोबारा से फिर महसूस हो रहा है. This information was also incorporated in the follow-up analysis of this case, which I will be sharing with you. So please analyze and come out with the remedy for both the cases, the initial visit and the follow-up visit. Thank you very much. Welcome all of you on today's VC. ये केस था जो आपने वॉइस नोट सुना होगा और उसके बाद बहुत अच्छी फीडबैक्स आपकी आई हैं, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, बड़े अच्छे इनपुट्स दिए हैं एंड आई एम डिलाइटेड. आपका माइंड अब सिर्फ रेपर्टरी तक ही सीमित नहीं रहा. यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिसकी कि हमें आज जरूरत है. आज की जो होम्योपैथी है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है. वी हैव टू बी ऑल इंक्लूसिव. कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल जाए वो ही आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लैंक बन जाए, एक सोर्स बन जाए डिसाइड करने के लिए पेशेंट की मेडिसिन. सो डिफरेंट एनालिटिकल स्ट्रेटजीज हैं केस को सॉल्व करने के लिए, और जहां जहां से हमें कुछ मिलता है वी शुड गैदर एंड ट्राई टू इम्बाइब एंड पुट इनटू आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस. हाउएवर, हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारा मेंटल इमोशनल स्टेट के ऊपर. कई दफा हम मेंटल इमोशनल स्टेट पे जाके, माइंड रूब्रिक्स पे जाके मोस्टली हम अपने केस सॉल्व कर लेते हैं. वेरी गुड. बट बिकॉज एज आई सेड वी हैव टू बी ऑल इंक्लूसिव, और जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ भी हमने वाबस्ता रहना है, और हम सीख भी रहे हैं. आपने पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स भी हमने पढ़ा है, लेंथेनाइड्स भी पढ़े हैं. सो फ्रॉम रेट्रो में जाके भी
जब स्टडी करते हैं तो हमें अपनी जो नॉलेज है उसको और थोड़ा एक बढ़ावा मिलता है, एक विशाल होती है आपकी नॉलेज, और लर्न करने का आपको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। हर केस के ऊपर हमने व्हाई के ऊपर जाना है। एज वी नो ऑल, व्हाई समथिंग हैज हैपेंड, व्हेन इट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड, वेयर इट हैज हैपेंड। होम्योपैथी हैज इट्स एन एडिफिस। ये एक इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है होम्योपैथिक साइंस का, वो इन 4 लेग्स के ऊपर खड़ा है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अगर इनमें से एक लेग निकाल लेंगे तो 3 लेग स्टूल बन जाएगा, विच विल बी अनस्टेबल, विच विल स्टम्बल एंड वी विल फॉल। सो हमें व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ का जो ध्यान है वो बहुत रखना है, और इसमें व्हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर केस में व्हाई मिलेगा आपको, बगैर व्हाई के, बगैर कॉज के कोई इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता। फिर हमने जब व्हाई देख लिया तो ये भी देखना है कि वो स्टक स्टेट कहाँ पे है, उसकी कहाँ पे लुक फिक्स्ड है, कहाँ वो बंदा रुका और स्टक हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि उसको फियर और फ्राइट, उसके दिमाग को इस इमोशन ने घेरा हुआ है। He cannot come out of this emotion of having suffered fright and fear due to the accident which happened suddenly. इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस केस में, और उसको अथॉरिटीज ने बेल आउट कर दिया। इंटरसेक्शन पे कैमरास लगे हुए थे, उन्होंने सबको खंगाल के देखी इंफॉर्मेशन। बहुत माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि नंबर 1, जो मोटरसाइकिलिस्ट था, ही वाज स्पीडिंग टू मच, ओवर स्पीड पे जा रहा था। और व्हेन द ड्राइवर वाज टेकिंग द लेफ्ट टर्न इन कंट्रीज में जो है, वो उसको लेफ्ट टर्न लेने वाले को पहले प्रायोरिटी है कि उसने लेफ्ट टर्न लेनी है, इंटरसेक्शन को क्लियर करना है, और दूसरी ट्रैफिक जो आ रही है उसने ध्यान रखना है कि जब इंटरसेक्शन क्लियर हो जाएगा देन आई विल मूव। उसमें क्या मिला कि ड्राइवर ने इंटरसेक्शन को क्लियर करने के लिए जो एक्शन लिया, उसका ध्यान दूसरे मोटरसाइकिलिस्ट ने नहीं दिया। सो ड्राइवर वाज नॉट एट फॉल्ट। बट इवन देन इसके मन में वो बात निकल नहीं रही कि ये मेरे से हुआ है और उस बंदे की डेथ हुई है, इसने इतने गिल्ट के अंदर वो अभी भी सफर कर रहा है। And his mind goes again and again to that fearful event. वहीं पे उसका जाके दिमाग टिकता है, वहां से वो अपना फोकस हटा ही नहीं पा रहा। ये फर्स्ट विजिट की उसकी सारी जो कहानी थी, उसके ऊपर हमने इस पे ही जो है फोकस किया कि वो अफ्रेड है, फियरफुल है, फ्राइट में है। आप में कई लोगों ने रूब्रिक दिया है कि fear to pass a certain point, cannot go around that, जहां पे उसको डर है। पर इससे भी हमने पीछे जाना है। उसका फियर, फ्राइट आगे सब रूब्रिक है, द इफेक्ट ऑफ फियर एंड फ्राइट स्टिल रिमेनिंग। उसके दिलो दिमाग के ऊपर वो नेगेटिव जो डर की, फ्राइट की जो एक इमोशन है, भावना है, वो उसको उसने काबू किया हुआ है सारे को। सो इसलिए वो उससे बाहर ही निकल नहीं पा रहा। सो फियर, फ्राइट एंड द इफेक्ट ऑफ फियर एंड फ्राइट स्टिल रिमेनिंग।
एक ये इसका किंग पिन रूब्रिक था जो इस केस में हमने लिया, और उसको परसिस्टेंट थॉट्स यही आते हैं कि मेरे से गलत हुआ है, बाहर नहीं निकलता, लोग देख लेंगे, कहेंगे वो किलर जा रहा है। उसको ये थॉट्स परसिस्टेंट जो आ रहे हैं वो अनप्लेजेंट थॉट्स आ रहे हैं, और इस कॉज की वजह से वो क्या हुआ है, वो अंदर ही घुस के रह गया, अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। He has preferred to isolate himself. He has preferred to stay alone, desiring no company. And at the same time, while staying alone, he is dwelling persistently on that unpleasant episode happening, जिसने को उसको डिस्टर्ब किए रखा है। आप में से बहुत मेहनत की लोगों ने, डॉक्टर हुसैन मुलैनी ने काफी अच्छा एनालिसिस किया, और डॉक्टर पूर्णिमा, डॉक्टर पंकजनी और काफी मैनी ऑफ यू, सॉरी अगर मैं सबका नाम नहीं ले सकता, आपने बहुत अच्छा रिफाइंड एनालिटिकल माइंड अपना और अप्रोच पेश किया। आप में से कईयों ने काली ब्रोमेटम के ऊपर काफी ध्यान दिया है। देखिए जो ब्रोमेटम है, अब हम यही वीसी का यही मतलब है कि हम थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर सकें। ब्रोमियम जो है उसको गिल्ट होता है, सेक्सुअल गिल्ट बहुत ज्यादा होता है उसमें, और वो फील करता है कि आई एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजियंस, मेरे से बदला लिया जा रहा है। अपने आप को सही ठहराता है तो गॉड को वो ब्लेम करता है। और ब्रोमियम बिकॉज इट्स हेलोजन, हेलोजन के जो थीम्स हैं या 17th स्टेज के जो थीम्स हैं वो हैं फीलिंग पुश्ड आउट, एग्जिट, बाहर निकलना, होल्ड ऑन और लेट गो या लेट गो ना कर पाना। ब्रोमियम feels that he, on account of his bad acts, जिसका कि उसको गिल्ट है, he is being pushed out of the village, he is being pushed out of the community. यहाँ वो ऐसा नहीं है, he has no such feeling that he is having guilt revolving around sex. No, he is not feeling that he is being pushed out of the community or village. रादर वो तो अंतर्मुखी होके, इंट्रोवर्ट होके, इंट्रोवर्जन में चला गया है, अंदर ही बैठा है। कल्केरिया इनसिक्योरिटीज को कवर करता है, नो डाउट। कंफ्यूजन भी होता है, कल्केरिया थर्ड स्टेज का हमारे पास एलिमेंट है, सेकंड का। सो कल्केरिया इसलिए उसमें डिपिक्ट नहीं हो रहा। आपने क्यूप्रम भी शायद कईयों ने निकाला, कईयों ने साइक्लामन भी निकाला। सैडनेस इम्पोर्टेंस फ्रॉम में आपने वो रूब्रिक लेके फिर काली ब्रोमेटम का आपने सोचा, उस पर फोकस किया। अब उसको सैडनेस इम्पोर्टेंस से नहीं है, उसका तो बिगर इशू है वो फियर और फ्राइट, जो एक बहुत बड़ा उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर बना है। उसको उससे बाहर निकालना है। सैडनेस डायरेक्ट नहीं आई है, इस वजह से आई है। सो ही हैज बिकम इनकंसोलेबल, और उसको अपनी एक सैल्वेशन की एंजाइटी भी है। जब वो इस गिल्ट से तब तक बाहर नहीं निकलेगा, उसको जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। एंजाइटी सैल्वेशन भी इसमें आता है। एंड ही हैज अवर्जन टू कंपनी एंड अवॉइड्स द साइट ऑफ पीपल। वो मिलना नहीं चाहता, मिलना जुलना नहीं चाहता, बाहर नहीं आना चाहता। और जब वो मास्क पहन के आता है बाहर कि उसको दुनिया देख ना ले, ये ना कह दे कि ये किलर जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, पब्लिक उसको ह्यूमिलिएट करेगी, वो चैग्रिन में जा रहा है, उसको लगता है कि मेरे को ये दुख होगा, ये कष्ट
मेरे को मानसिक लेवल पे होगा, इसलिए वो उसको अवॉइड करने के लिए वो बाहर ही नहीं निकलता। अगर निकलता है तो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता ना। इसमें रूब्रिक आगे एक और जुड़ता है, डिल्यूजन wretched she looks when looking in mirror। ये रूब्रिक यहाँ कैसे फिट होगा? वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ हिज होम इज ए मिरर फॉर हिम। जब वो अपने फेस को बगैर ढके बाहर जाएगा तो लोग उसे देखेंगे, उसके लिए जो लोग उसके सामने आएंगे वो एक मिरर है। उनके मिरर में उसको अपना जो फेस है वो रेचेड लगता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अवॉइड ह्यूमिलिएशन। इसलिए I had thought of this rubric also, delusion, wretched she looks when looking in the mirror. Outside world, outside people, open environment is a mirror for him। जिसमें वो अपनी शक्ल देखता है तो उसको फिर वही गिल्ट महसूस होता है, ह्यूमिलिएशन में का डर लगता है। जब वो सेकंड विजिट पे आया तो उसने फिर कॉज बतलाया। मैं डॉक्टर अशोक वैद्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो एनालिटिकल चार्ट है पहली विजिट का और सेकंड विजिट का, अगर आप शेयर कर दें, डाल दिया टू गो थ्रू दी rubrics which were taken in the first instance। So अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि नेट्रम यूरियाटिकम इज रनिंग all through the selected rubrics, and the selected rubrics they define his mental emotional disposition, और उस पर नेट्रम्यूर बखूबी से सामने आ रही है। अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल से भी रेट्रो करके देखेंगे तो आपको फिर भी काफी मदद मिलेगी। वो अकेला है, फेस नहीं करना चाहता वर्ल्ड को, ही इज अलोन, फीलिंग अलोन, वांट्स टू बी अलोन, और अलोननेस, अलूफनेस हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। और म्यूरियाटिकम, जैसे आपने नेट्रोम्यूरियाटिकम देखा, म्यूरियाटिकम क्या है? वो हेलोजन है, क्लोरेटम, और 17th स्टेज है। 17th स्टेज में क्या है? एग्जिट है, लेट गो है, होल्डिंग है, और पुश्ड आउट है। दिस फीलिंग ऑफ बीइंग पुश्ड आउट, होल्डिंग ऑन, ultimately it also gets connected to life and death situation. During delivery, the child, the fetus is watching for the first breath. And what happens in many cases, we have seen and we have heard, listened or read, some accident take place. The fetus is no more even during delivery or just after delivery. Mom and child are put to risk and there is a fear of death. And in certain cases, unfortunately, it happens. So 17th stage is also connected with death, the exit. Death is also an exit from the world. So Natrum muriaticum on analytical rubrical basis was prescribed to him in 200 potency. He reports that for 20 days, I really felt at the top of the world. My sexual power returned with a big bang. जैसे मैं पहले था उतना ही मैं strong हो गया, and I was very happy. There is a rubric, cheerful cohesion after. He was so happy कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और वो जहाँ उसकी स्टक स्टेट थी, he was having all these unpleasant, persistent thoughts, was dwelling on unpleasant
subjects and was having a lot of fear, fright. उससे उसको निजात मिली थी. But for that incident के एक इसका जो फ्रेंड उसको मिलने आना चाहता था, he didn't want to confront him. Somehow उसने उसको बुला लिया, वो घर पे आ गया, बड़ी अच्छी बातें की, पर आखिर में वो फिर कोई ऐसी उसको एपिसोड स्टोरी सुना गया जिससे कि सारे का सारा जो घटनाक्रम था वो उसको रिविजिट हो गया और वो फिर उसी रिलैप्स में चला गया. So the rubrical analysis was again done. जी. आमतौर पे हम क्या करते हैं, नाउ हियर लाइज द डिफरेंस. यहाँ आप थोड़ा सोचने की बात है पोटेंसी पे और रेमेडी पे. जनरली हम ये करते हैं कि अगर रिलैप्स हो गया तो हम उसकी 6 पोटेंसी पे जाते हैं. वी लोअर द पोटेंसी. अब यहाँ पे जो लोअरिंग डाउन ऑफ पोटेंसी है, that is not advised because I have been taught by Dr. George Vithalkos also in the International Academy of Classical Homeopathy in Greece. So उनकी जो teachings हैं बाकमाल हैं. What Dr. George Vithalkos says that whenever there is a complete relapse of the problem after a simillimum is given, there has to be a cause behind it. वो cause आपने देखना है क्या है. The possibility of the likely cause can be कोई extraordinary stress अगर mind पे आ गई है, that also antidotes the remedy. Antidotal effect होता है वो. So what antidotes the right remedy? Any big stress, extraordinary stress, कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है in the life of the person, that antidotes the right action of the remedy and relapse happens. Or second possibility is the remedy given is a partial simillimum, is a partial remedy. उसने कुछ देर काम किया, फिर उसने अपना काम छोड़ दिया. Third is antidoting the remedy by bad lifestyles, by reveries, खाने पीने की गलत आदतों से भी रेमेडी एंटीडोट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 6-7 स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी डेली पी रहा है, रेमेडी कैन नॉट स्टे इन फ्रंट ऑफ दैट बैड हैबिट. सो जहां आपको कहीं ऐसा कॉज मिले जहां पे इनमें से कुछ हुआ है, so you have to take it that your remedy was working well, but it has been antidoted. The effect has been cut off due to either extraordinary stress या और कोई रीजन हो सकता है. अब इस केस में extraordinary stress फिर हो गई थी उसको. So what it told, what was the information we were getting? That the remedy was right, but it has stopped and dropped its action on account of getting antidoted due to the extraordinary stress which the patient suffered on his mental, emotional after listening to the stories, horrible story. So here Dr. George Vithalkos says, administer the same remedy in the same potency. Do not go up high or do not try to find another remedy. But if the mental state on the follow-up is also pointing to the same remedy, ये तो फिर सोने पे सुहागा है. In case other remedy भी आती है, then that means there are layers of problems and you have to treat by layers.
और अगर कोई अंडरलाइंग रेमेडी है वो बड़ी उभर के डिपिक्ट होके आएगी, परंतु उसमें ये नहीं होगा कि फुल रिलैप्स हो गया. देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर बेटर, there will be certain which are partially better, there are certain which are still untouched. So जो untouched हैं, those problems are belonging to an underlying layer जिसके लिए आपको second remedy की तलाश करनी होगी. बट इस केस में क्या था, कोई पार्शियल बात नहीं हुई, कुछ और नहीं हुआ, जो इश्यूज वो लेके आया था स्ट्रेट वे उनका रिलैप्स हो गया और उसकी मेंटल इमोशनल डिस्पोजिशन फॉलो अप पे भी नेट्रम्यूर ही प्रेजेंट कर रही थी. ऑन द फॉलो अप आल्सो ही वाज गिवन नेट्रम muriaticum 200. इट वाज रिपीटेड as it was given in the first instance. After taking the remedy, the patient again said the same thing, I am feeling at the top of the world. Now I come out of my house, I move with dignity now. I don't have the fear of being humiliated at all. उसको अपने आप पर विश्वास आ गया कि मैं तो बेल आउट हो चुका हूं. I have been exonerated in this case legally. So अब मैं क्यों अपने माइंड को उस नेगेटिव स्टेट की तरफ लेके जाऊं. So his mental, emotional also got strong. So this was the case. यही होता है फुल प्रेस्क्राइबर के लिए कि वो अपने आंख और कान खोल के रखे और आप सबने खोले हुए. For that I congratulate all of you. Thank you very much. सर यहाँ पर ब्रोमेटम सबके दिमाग में आ रहा था, मेरे भी दिमाग में आया था ब्रोमेटम का फील. बट जिस तरह आपने भी कहा कि ब्रोमेटम को ऐसा लगता है कि उसको पनिश किया जा रहा है, ये तो खुद को पनिशमेंट दे रहा था ना. जो हम गलत ले रहे थे वो यहाँ से क्लियर हो गया कि वो ब्रोमेटम नहीं है. एंड उसमें सर मुझे एक समझ में नहीं ये बात कि वो सेक्सुअल हैबिट्स थी उसके अंदर काफी ज्यादा, जैसे कि आपने कहा कि वो ही यूज्ड टू बी मैस्टरबेट इन हिज लाइफ आल्सो. उसकी एडिक्शन थी उसको. हाँ, तो अगर होता तो वो भी केस में थोड़ा सा दिखाता, वो बोलता उसके लाइफ का, वो भी अगर हिस्सा होता तो आई थिंक मतलब काली ब्रोम अगर होता ना तो शायद वो उसके बारे में कुछ बोलता, सर मैंने ऐसी गलती अपनी जिंदगी में की है, शायद उसके वजह से भी मेरा. he said it as a passing reference. नहीं, आपने कहा था ना कि वो उसमें उसको चाइल्ड के लिए भी वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा. उस पे मैं आ रहा हूँ, मैं भूल गया था, अभी बता रहा हूँ आपको. जी जी. वो अब उसका फोकस क्या है, फैमिली बढ़ाने का, आगे फैमिली को एक्सटेंड करने का, टू ब्रिंग ए चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड. और वो कनेक्ट होना चाहता है, ही वांट्स टू कनेक्ट. वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मींस ही इज अनेबल टू डू द सेक्स प्रॉपर. और रूब्रिक हमारा है वांट्स टू बिगेट द चाइल्ड. उसमें नेट्रम्यूर भी पड़ी है अगेन. वो मैंने रूब्रिक लिया भी है शायद. ओहो, जी जी, समझा. वांट्स टू बिगेट द चाइल्ड. वो रूब्रिक तभी मैंने लिया है. उसका फोकस क्या है, टू कनेक्ट, टू इंक्रीज द फैमिली. और हमारी सिलिका सीरीज के अंदर भी ये बखूबी फिट होता है. तभी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ सबसे कि आप रेट्रो में जाके ना हर एक केस को कोशिश करो देखने की जहां मिनरल है. वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक सिक्स्थ सेंस है ना, वो जागेगी, वो इल्यूमिनेट होगी और कहीं ना कहीं आप उसको फिट कर पाएंगे. हाँ, ये पीरियोडिक टेबल के साथ भी इसका सेम्बलेंस हो रहा है. तो इस केस में फैमिली को वो आगे बढ़ाना चाहता है और बच्चा कंसीव होना चाहिए. He wants to connect with wife, but that connection is not happening because उसको ये fear and fright की वजह से उसकी सेक्सुअल प्रोग्रेस सफर कर गई है. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही सटल अंडरस्टैंडिंग था, बहुत ही सटल अंडरस्टैंडिंग था. ह्यूमिलिएशन का, म्यूरेटिकम का जो मेन एलिमेंट था, ह्यूमिलिएशन जो फील करता है, इसलिए थोड़ा सा मिस कर रहे थे हम गिल्ट और ह्यूमिलिएशन में. So thank you very much. Gratitude to you भाई, और आप सबको धन्यवाद. Thank you very much for listening, participating, applying your mind and attending today's video.